Okay, Assalamu alaikum dear students. Welcome to our lecture number 2, and it is about coordinates. Lines and increments. Right? Coordinates, lines and increments. So let's discuss about the Cartesian coordinate. So we have here our positive x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis, and this is negative y-axis, right? So if P is any point in plane, we can draw lines through P perpendicular to two coordinates of P, right? So perpendicular to two coordinates of P, right? So we have, so if we have a point here P which is represented by AB, so this shows that P is the, here the x-axis is A, the value of x-axis is A, and the value of y-axis is B, right? So PAB is the point on the Cartesian coordinate systems, right? So this is our Cartesian coordinate in which a point PAB is located. This is the origin where both the x and the y coordinate is 0, right? And origin also divides the x-axis into positive x-axis and the negative x-axis. So if we draw it again and we want to know which coordinate is positive in which axis and which coordinate is negative in which axis, right? So if we say that we have first quadrant and we have second quadrant and we have third quadrant and we have fourth quadrant, right? So in the first quadrant both the x-axis and the y-axis are positive. In the second quadrant x-axis is negative and the y-axis is positive. In the third quadrant both are negative, and in the fourth quadrant x-axis is positive and y-axis is negative, right? So this is our coordinate system, right? So what is basically the increments and distance? Let's discuss about the increments and distance.
So if we have del x, this is equal to x2 minus x1. So this is basically the rate of change in the x, right? So if we apply the distance formula, for point in the plane, सो जिसमें हमारे पास P एक पॉइंट है विच इज़ x1 y1 एंड Q एक सेकंड पॉइंट है x2 y2, और हमने P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा दिस इज़ इक्वल्स टू चेंज इन दी x माइनस चेंज इन दी y. दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस सॉरी बीच में प्लस आएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट. सो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फॉर्मूला. सो लेट्स सॉल्व द एग्जांपल 3. So example 3 says distance between P minus 1 comma 2 and Q 3 comma 4 is, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो आवर डिस्टेंस इज़ ओके. सो आवर डिस्टेंस इज़, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 3 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 इज़ माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. This is equals to under root of 20. This is equals to under root of 4 by 5, or we can write it as 2 under root of 5, right? So let's discuss about some graphs. See, if we have a circle centered at origin, then first point is if a is greater than 0, then equation x square plus y square, this is equals to a square under root of x square plus y square, this is equal to square root of a square, this is equal to a. So our radius is a, right? So ये जो है x square plus y square equal a square, अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करें तो हमारे पास एक सर्कल आएगा जिसका रेडियस क्या है, बेसिकली a है, ठीक है. रेडियस इज दी डिस्टेंस बिटवीन दी ओरिजिन एंड दी फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी एंड पॉइंट ऑफ दी सर्कल, ठीक है. सो ये हमारे पास सर्कल है. अब अगर हमारे पास यही इक्वेशन हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तो फिर हमारे पास उस केस में हमारा ये जो सर्कल है वो सर्कल अंदर से हॉलो नहीं होगा, बल्कि ये फिल्ड सर्कल होगा, ठीक है. यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये बेसिकली स्फीयर को शो करेगा, ठीक है. सो आई होप इट क्लैरिफाइज. नेक्स्ट इज
कि अगर हमारे पास है इक्वेशन if we have equation example 5 is if we have equation y is equal to x square, right, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो x की हम बेशक पॉजिटिव वैल्यू लगाएं नेगेटिव वैल्यू लगाएं, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ इस एक्सिस पे हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, सिर्फ ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई स्क्वायर बेसिकली एक अपवर्ड पैराबोला को शो कर रहा है, ठीक है। ये पैराबोला की इक्वेशन है जो कि एक अपवर्ड पैराबोला को शो कर रहा है, जिसमें यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, बेसिकली 0 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोकेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे तो आ जाएगा -1, +1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2, 4, और यहाँ पे लोकेट करेंगे तो आ जाएगा -2, 4, राइट। सो दिस इज आवर पैराबोला। So let's discuss about some straight lines. So if we have this is x-axis, this is y-axis, and we have a point P1 here, and we have a second point P2 here. If we join these 2 points we get a straight line, right? So this is our, अब अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, स्लोप फाइंड करनी है, तो हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए क्या होगा कि हम देखेंगे, और यहाँ पे एक हमारे पास इसके यहाँ पे Q पॉइंट है, तो हम इसका देखेंगे कि हमारा डेल एक्स यानी चेंज इन एक्स कितना है, और हम इसका देखेंगे डेल वाई चेंज इन वाई कितना है, ठीक है। तो डेल एक्स जो है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रन, और डेल वाई क्या है, बेसिकली क्या है, राइज, ठीक है। सो हमारे पास स्लोप फाइंड करना है m, तो दिस इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज डिवाइडेड बाय रन मीन्स डेल वाई by del x, this is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, this is equal to m. So this is our slope, right? So अगर हमने एक क्वेश्चन करना हो, यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ और हमें स्लोप्स फाइंड करनी है उसमें, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट्स मी ड्रॉ द ग्राफ। हमारे पास एक पॉइंट है P1 0,5, 5 कहाँ पे, यहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये 0 है। तो 0,5 का क्या मतलब है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेटेड है पॉइंट P1 0,5, राइट। देन वी हैव P2 4,2, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे यहाँ पे कहीं 2 लोकेटेड है, तो 4,2 यहाँ पे P2 लोकेटेड है, 4,2। देन वी हैव 0,-2, यहाँ पे कहीं पे -2 होगा, ठीक है। सो 0,-2, दिस इज P3 0,-2, राइट।
एंड देन वी हैव 3, एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 3 और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है 6, ठीक है। P4 है 3,6। सो वी हैव these two lines, ठीक है। P3 और P4 ज्वाइंट हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है P1 और P2 को ज्वाइन करके। सो ये हमारे पास हमारा ग्राफ है जो हमने शो कर लिया। अब अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है डेल वाई बाय डेल एक्स P1 और P2 वाली लाइन की, ठीक है, तो डेल वाई क्या आ जाएगा जी, डेल वाई क्या आ जाएगा, y2 इज़ 2 माइनस y1 इज़ 5 डिवाइडेड बाय x2 इज़ 4 एंड y1 इज़ x1 इज़ 0। सो ये आ जाएगा -3/4 विच इज़ n, राइट। सिमिलरली m इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 विच इज़ बेसिकली 8/3, so which is equal to 8/3, ठीक है। सो ये हमारे पास सेकंड स्लोप आ गई है, राइट। सो ये हमारे पास इस तरह से हम स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड है कि अगर हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है, ठीक है। So if we have to find the angle of inclination, so the relationship between the slope m of a non-vertical line is phi। सो हमारे पास उस केस में स्लोप क्या आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट फाई, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन दी स्लोप m ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइंस हैं यानी पैरेलल लाइंस हैं, नॉन वर्टिकल को हम पैरेलल भी कह सकते हैं, तो उस केस में अगर हमने स्लोप निकालनी है तो m इज इक्वल्स टू टेंजेंट फाई आ जाएगा, ठीक है। सो इफ़ वी हैव नॉन वर्टिकल लाइंस L1 एंड L2, so if we have non-vertical lines L1 and L2 have slopes M1 and M2 satisfy M1 M2 equal -1, so each slope is the negative reciprocal. So what is meant by negative reciprocal? If we have m1, this is equal to -1/m2, and if we have m2, this is equal to -1/m1, ठीक है। यानी जो फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है अगर वो m1 है और सेकंड की m2 है, तो m1 किसके इक्वल होगी, -1/m2 के, और अगर m1 है हमारे पास और हमने m2 फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी -1/m1 की, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
m1 हमारे पास फिर क्या है जी, फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट phi 1, this is equals to a over h, and m2 is equals to tangent phi 2, this is equals to minus h over a। ठीक है, अगर m1 a by h है तो m2 क्या है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो नेगेटिव और रेसिप्रोकल इसका क्या आ जाएगा, h over a। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, कि अगर हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे, राइट। ओके, सो वी हैव एग्जांपल 6 says the vertical and horizontal lines through point 2, 3 have equations x is equals to 2 and y is equal to 3। ठीक है, सो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है और हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसका मतलब है कि वो लाइन क्या होगी कि हमारे पास एग्जैक्टली x, अगर ये 2 है और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर एक लाइन है, तो हमारे पास एक ये लाइन आ जाएगी एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, तो y इज इक्वल टू 3 के ऊपर एग्जैक्टली ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू 3, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू 3, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू 2, और जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं दिस पॉइंट इज बेसिकली 2, 3, राइट। अच्छा, अब वो है कि अगर हमारे पास स्लोप हो लाइन की जी, सो अगर हमारे पास स्लोप हो लाइन की and this is equals to y minus y1 divided by x minus x1, then हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको हम उस तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, ठीक है, y1 को सिर्फ ले जाएं, y इज इक्वल टू y1 प्लस m ऑफ x माइनस x1। ठीक है, सो हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट स्लोप इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन, पॉइंट स्लोप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल 7। Example 7 says हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2, 3 और हमारे पास स्लोप गिवन है विच इज़ -3/2, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, बेसिकली पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, यानी एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो मैं अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखूँ तो आ जाएगी y इज इक्वल टू y1 प्लस m ऑफ x माइनस x1, जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है, y1 की क्या वैल्यू है 3, दिस प्लस स्लोप क्या है -3/2 इंटू x माइनस x1 इज 2।
ठीक है। सो हमने पॉइंट भी पुट कर दिया और हमने स्लोप भी पुट कर दी। सो 3 माइनस 3/2x प्लस 3 रह गया, ठीक है। जी 3 रह जाएगा, राइट। तो अब ये क्या है, ये 3 प्लस ये 3 मिलके 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 6 विच इज़ आवर डिज़ायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 6। सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल 8। So example 8 says, if we have line -2, -1 and we have the second point 3, 4 and we have to calculate the slope. So it is simple, m is equals to y2 minus 5(1) divided by x2 minus x1, ठीक है। हम स्लोप फाइंड करेंगे 4 -(-1) जी, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 3 -(-2), ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 1, राइट। सो अगर हमारे पास हाँ जी, अब वो कह रहा है कि ये स्लोप आपके पास गिवन है m इज इक्वल टू 1, जो आपने फाइंड किया, गिवन नहीं है, ये आपने फाइंड की है, ठीक है। ये स्लोप है और ये पॉइंट है, तो इससे आप जो है वो इक्वेशन लिख देंगे। स्लोप m हमारे पास, हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्लोप आ गई। सो अब आप ये स्लोप और एक पॉइंट यूज़ करके इक्वेशन लिखें, फिर यही स्लोप और दूसरा पॉइंट यूज़ करके इक्वेशन लिखें और वो देखें कि वो इक्वल आती है कि नहीं। सो लेट्स डू डैट। सो अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है और स्लोप है। तो हम पॉइंट्स को फॉर्म लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस m ऑफ x माइनस x1। y इज इक्वल टू y1 इज -1 प्लस m इज 1, x माइनस x1 इज -2। So y is equals to -1 plus x plus 2. So y is equal to x plus 1. This is our one equation. The second is y is equals to y1 plus m of x minus x1. So y is equal to 4 plus 1 into x minus 3. So y is equal to 4 plus x minus 3. So y is equals to x plus 1, right. So this is our example 8 जी। सो आगे हम देखने हैं, हमने इंटरसेप्ट्स देखने हैं कि इंटरसेप्ट्स अगर हमने फाइंड करने हो। देखें अब हमारी इन दोनों इक्वेशंस का आंसर सेम आया है। अब क्या है, हमने इंटरसेप्ट्स देखने हैं कि इंटरसेप्ट्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो वो हमने कैसे करने हैं, विच इज़ दी लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, राइट। इफ वी हैव टू कैलकुलेट दी इंटरसेप्ट्स, जी। सो if we have here is A and here is B, and if we have this is our x-intercept, and this is our y-intercept, right. So y is equal to, अब y1 जो है वो क्या है, इस वक्त b है, ठीक है।
सो बी इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि जहाँ पे हमारी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वो वाई इंटरसेप्ट है, और जहाँ पे हमारी ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो एक्स इंटरसेप्ट है। सो वाई इज इक्वल टू बी प्लस एम स्लोप एक्स माइनस हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इस पूरी लाइन के ऊपर, यानी यहाँ पे ए आएगा एक्स माइनस ए, लेकिन इस वक्त अभी ए के ऊपर ये एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, इस पूरी लाइन के ऊपर ज़ीरो है ना, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, ये क्यों ज़ीरो है, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू बी प्लस एम ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या है, इस तरह की इक्वेशन कहते हैं कि स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एम इज स्लोप एंड बी इज़ दी इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने स्लोप और इंटरसेप्ट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। लेट्स डू एग्जांपल 9। If we have the line y is equals to 2x minus 5 has slope 2 and y intercept -5, ठीक है। तो हमने अगर इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू स्लोप इज 2x और प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, -5, y इंटरसेप्ट इज -5। सो दिस इज आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। So let's do example 10, which is the last example. Example 10 says